مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج کورونا کا وبائی مرض جو ہے یہ عالمگیر وبا بن کر پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور اب تک اس نے 23 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو یہ نگل گیا ہے۔ اب چونکہ کوئی اس کی ویکسین ابھی تک بنی نہیں ہے، تو دنیا میں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں، آپ سوشل ڈسٹنس کو قائم رکھیں اور اجتماعات نہ کریں، جمع نہ ہوں۔ ایسے میں جب اس کے پھیلاؤ کو روکنے اور کم کرنے کی عالمگیر کوششیں ہو رہی ہیں، تو کچھ مذہبی رہنما ایسے بھی ہیں جو لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیے، آپ جمع ہوئیے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ایک بشپ صاحب خداوند میں سو گئے۔ CNN کے 14 اپریل کے آن لائن ایڈیشن نے یہ سرخی جمائی کہ وہ بشپ جو کہتا تھا کہ خدا کورونا کے خوف سے بڑا ہے، وہ خود کورونا سے مر گیا ہے۔ اب ایسی باتیں خدا کے جلال کا سبب نہیں بنتی، بلکہ جگ ہنسائی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں ان کا خدا کی ذات پر سے ایمان اور کم ہو جاتا ہے۔ نہ فقط وہ بشپ صاحب جو ہیں وہ خداوند میں سو گئے اس بیماری کی وجہ سے، اب ان کا خاندان بھی اس بیماری کے سبب سے تکلیف میں ہے، کیونکہ وہ ان کے خاندان میں بھی پھیل گیا ہے۔ خدا را، آپ مذہبی رہنما، آپ قیمتی لوگ ہیں، آپ اساسہ ہیں۔ روح القدس نے آپ کو ایک دن میں نہیں بنایا، ایک مہینے میں نہیں بنایا، ایک سال میں نہیں بنایا، بلکہ آپ پر روح القدس نے سالہ سال محنت کی ہے، پھر جا کر آپ ایک ایسا برتن بنے ہیں جن سے وہ اپنا جلال ظاہر کر سکے۔ آپ قیمتی ہیں، آپ اساسہ ہیں، جہاں تک ممکن ہو اپنی جانوں کو بچائیے۔ اعمال کی کتاب میں جب پالوس نیا مسیحی ہوا تو اس کے نام باب میں اس کی 23 اور 25 آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اور وہاں پہ لکھا ہے نام باب کی 23 سے 25 آیت میں، اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا، مگر ان کی سازش ساؤل کو معلوم ہو گئی۔ وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے، لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا۔ اب ساؤل جو ہے یا پالوس جو ہے، یہ کوئی ڈرپوک شخص تو نہیں ہے۔ خدا نے اسے تیار کیا تھا کہ یہ بادشاہوں کے سامنے اس کی گواہی دے، یہ حکمرانوں کے سامنے اس کی گواہی دے۔ لیکن جب اس نے ایک پلاٹ کے بارے میں جانا جسے مارنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، تو دیوار سے شہر کی دیوار، شہر کی فصیل سے لٹک کر
टोकरे में बैठकर उसने मौत से अपनी जान बचाई। हम सब मसीही जो हैं वो शहादत के लिए बुलाए गए हैं। ईमान है हमारा, तैयार हैं हम, लेकिन जब तक शहादत का सही वक्त ना आ जाए, हमें मसीह के लिए, मसीह के लोगों के लिए अपनी अपनी जानों को बचाना है। जब वक्त आ जाए, ऐसा वक्त कि आपसे मसीह का इनकार करने के लिए कहा जाए, जब ऐसा वक्त आ जाए कि आपसे आपके सेवियर का इनकार करने के लिए कहा जाए, तब वक्त है, इनकार मत कीजिए। तब अपनी जानें उसकी गवाही के लिए दे दीजिएगा। लेकिन जब तक वो सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आपकी जानें कीमती हैं, असासाएं हमारे लिए। इसलिए खुदारा अपनी जानों को महफूज रखिए खुदा के जलाल के लिए। रूह कुद्स ने आपको एक दिन में तैयार नहीं किया, एक महीने में तैयार नहीं किया, साला साल लगाए हैं। कीमती हो आप, असासा हो हमारा। आप में से कुछ ऐसे हैं जो दहाइयों में पैदा नहीं होते, आप में से कुछ ऐसे हैं जो सदियों में पैदा नहीं होते। बड़े कीमती लोग हैं आप। खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे। आए मेरे साथ एक हवाले को बाइबल में से देखिए, खुरूज की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 22 से 23 आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई, गौर कीजिए, तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए। क्योंकि जो है, ये नोट करें, ये वजह है, कॉज है, वाई, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा, तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। अब जब मिस्र में मरी आने वाली थी, मौत आने वाली थी, तो उससे पेशतर बनी इस्राएल से कहा गया कि बरे का लहू लेकर अपने अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाएं। लेकिन एक बड़ी अहम बात मूसा ने लोगों से की और उन्हें हिदायत की कि तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना आए। वजह क्या है कि मरी होगी बाहर, क्योंकि काज ये है आप स्टे एट होम हो। काज ये है कि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। तो उस बड़ी मरी के वक्त में खुदा के बंदे मूसा ने, अब ये मूसा कोई आम नबी नहीं है, इसकी बाबत खुदा ने हारून और मरियम के वसीले से तमाम लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि अगर तुम में से कोई नबी होगा तो मैं उससे ख्वाब में, रोयाओं में बातें करूंगा। गिनती की किताब उसके 12वें बाब में आप ये माजरा, आप ये बातें देख सकते हैं। लेकिन मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। मैं उससे मुआमों में नहीं बल्कि रूबरू बात करता हूं, सरी तौर पर बात करता हूं, और उसे मेरा दीदार भी नसीब होता है। अब ये मुकाम मूसा है, ये
वो बात है जो मूसा को दीगर अंबिया से मुमताज करती है कि दूसरों से खुदा बातें करेगा ख्वाबों में, रोयाओं में, मुआमों में, लेकिन मूसा उससे खुदा मुआमों में नहीं, रूबरू बात करता है, फेस टू फेस बात करता है, सरी तौर पे बात करता है, उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। अब ऐसा बड़ा नबी, अब ऐसा बड़ा लीडर जब मरी के वक्त में लोगों से स्टे एट होम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या मूसा जैसा बड़ा लीडर और बड़ा नबी जो है वो आज के लीडर्स के लिए, रहनुमाओं के लिए एक रोल मॉडल नहीं है? अजीजों, मुसीबत के वक्त में, मरी के वक्त में, वबा के वक्त में इख्तियात करना बुज़दिली नहीं है। खुदारा इख्तियात में और खौफ में फर्क को समझिए। होशियार बला को देखकर छुप जाता है, ये खौफ नहीं इख्तियात है। अहमक जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है, वो बला का, वो मरी का मुकाबला करता है, ये बहादुरी नहीं है। खुदारा आप खौफ और इख्तियात को समझिए। बाइबल हमें इख्तियात से मना नहीं करती, बल्कि इख्तियात की तालीम देती है। और आज जितने भी आलमगीर तरीकों से इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें हो रही हैं, आप देखें बाइबल में वो हजारों साल से मौजूद हैं। आज पहले ये बातें लिखी गई हैं। अब यहां पे देखिए, मूसा लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, घरों में रहिए, स्टे एट होम, पहले से मौजूद है। एक हवाला और देखिए मेरे साथ इसी बाबत में। अहबार की किताब उसके 13वें बाब और उसकी 45 से 46 आयत में लिखा है, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। अब यहां पे हमें कोढ़ी के मरज के बारे में, कोढ़ी के ताल्लुक से हवाला मिलता है। कोढ़ एक ऐसा मरज था जो दूसरों तक फैल सकता था। चुनांचे इसके फैलाव को रोकने के लिए यह हुक्म था, कोढ़ी के कपड़े फटे हों, उसके सर के बाल बिखरे हुए हों, हेड कवर ना हो, और उसका ऊपर का होंठ जो है वो कवर हो। मास्क जिसकी आज अहमियत बयान हो रही है, मास्क के बारे में आज बताया जा रहा है, बीमारी को रोकने, बीमारी के फैलाव को कम करने, खत्म करने के लिए मास्क पहने। इसकी तालीम बाइबल में हजारों साल से मौजूद है। कोढ़ी जो है जब वो पब्लिक में हो तो जरूर है उसके कपड़े फटे हों और उसके सर के बाल बिखरे हों, और वो ऊपर के होंठ को कवर करे, ढांपे और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। अब यहां पे हमें सोशल डिस्टेंस की भी तालीम मिलती है। कोढ़ी जब पब्लिक में हो तो उसकी जो आउटर अपीयरेंस है वो ऐसी हो कि लोग उसे दूर से देख के जान ले कि ये कोढ़ी है। हमने इससे सोशल डिस्टेंस को
कायम रखना है ताकि बीमारी आगे ना फैले। कोड़ी खुद भी चिल्लाता जाए नापाक नापाक, ताकि वो लोग जिनकी नजरों से वो ओझल है वो आवाज सुन के रास्ते से हट जाए, ताकि कोई उसके मर्ज में मुब्तला ना हो। अब कोढ़ का मर्ज जो है वो खांसी करने से, छींक मारने से फैलता है, इसलिए उसका फेस जो है वो कवर हो। मास्क की तालीम बाइबल में हजारों साल से मौजूद है। सोशल डिस्टेंस अभी हमने देखा कोड़ी के ताल्लुक से कि सोशल डिस्टेंस को कायम रखा जाए ताकि बीमारी आगे ना फैले। और फिर आइसोलेशन में रखने की तालीम भी हमें यहां पे मिलती है कि बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। आज कोरोना के मरीजों को आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, अलग थलग अकेला रखा जाता है। बाइबल में हजारों साल पहले बयान किया गया, उसका मकान लश्करगाह के, कम्युनिटी के, मोहल्ले से बाहर हो। बेहतर है शहर से बाहर हो, और भी बेहतर है वो अकेला रहा करे। ये किस लिए खुदा ने लिखवाई है? वही खुदा है जो शाफी खुदा है, वही खुदा है जिसने आपका और मेरा फिदिया दिया है। लेकिन वो फकत शिफा का खुदा नहीं है, वो सेहत का भी खुदा है। और बाइबल में हमें सेहत के ताल्लुक से बहुत कुछ मिलता है। खुदा ने इख्तियाती तदाबीर हमें बताई कि हम सेहतमंद रहें। जहां पे हमने बाइबल में से स्टे एट होम के बारे में देखा, मास्क पहनने के बारे में देखा, आइसोलेशन के बारे में देखा, सोशल डिस्टेंस के बारे में देखा, तो वहीं पे बाइबल में क्वारंटीना की तालीम भी मिलती है। क्वारंटीन जो है, आए मेरे साथ इसके बाबत भी देखें। अहबार की ही किताब, उसका 13वां बाब और 4 से 6 आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफेद हो, पखाल से गहरा न दिखाई दे, और न उसके ऊपर के बाल सफेद हो गए हों, तो काहिन उस शख्स को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे मुलाहजा करे, और अगर वो बला उसे वहीं की वहीं दिखाई दे और जिल्द पर फैल ना गई हो, तो काहिन उसे 7 दिन और बंद रखे, और 7वें दिन उसे फिर मुलाहजा करे, और अगर देखे कि उस बला की चमक कम है और जिल्द के ऊपर फैली भी नहीं है, तो काहिन उसे पाक करार दे, क्योंकि वो पपड़ी है। सो वो अपने कपड़े धो डाले और साफ हो जाए। अब कोड़ी को तो हमने देखा किस तौर पर रखना है। अब उस शख्स के बारे में जिस पर शक हो किसे हो सकता है कोढ़ हो, सिम्टम्स नजर आए, तो उसे काहिन जो था 14 दिन तक क्वारंटीना में रखता था। पहले 7 दिन रख के उसे चेक करता था, और फिर चेक करने के बाद मजीद 7 रोज उसे जो है वो बंद कर दिया जाता था, फिर उसे मुलाहिजा किया जाता था। तो बाइबल मुकद्दस में स्टे एट होम के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, सोशल डिस्टेंस के बारे में, मास्क पहनने के बारे में और क्वारंटीना के बारे में तालीम आज से नहीं हजारों साल से मौजूद है। जब ना तो साइंस नजर आती थी, ना कोई तिब के शोबे में इतनी तरक्की हुई थी, तब भी आपका और मेरा खुदा लोगों को
بچا رہا تھا، وہ صرف شفا کا خدا نہیں ہے، صحت کا بھی خدا ہے، اور آپ کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت